Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So I am getting a lot of messages and comments also about PNB clerk joining. Now, as far as my information is concerned, there is no news when this will happen. Okay. Now, PNB clerical joining is scheduled or planned by circle offices or regional offices because clerical recruitment is their task. As soon as I will get some information, I will definitely share. But if you are getting very curious to know, so you can approach the nearby regional or circle office of Punjab National Bank to know what is their plan. This plan will be displayed on their website also. So you have to keep patience and keep watching the website. We have also created one Telegram channel where I am giving update of all joinings and DVs. I am placing the link in the description box. You can join that. But unless I get some concrete information, I cannot share with you, okay? Because you are worried, it is okay. But the selection is valid up to 31st March 2025. So bank always get the appointment letter as per the requirement of staff. So they might have done the DV, does not mean that they should immediately absorb the candidates. So it is a process. And every bank has its own planning on which date and how induction of staff will be done, whether in single batch or different batches. So you have to keep the patience. And if you are so curious, the nearby regional or circle office can give you some information because they will be the first one. Those will be getting the information about your induction. Some people are making call to head office. It will be of no use because head office does not, it is difficult to get information from head office. But from your local offices, you can still get some information. But I am seized of the matter. I am trying my level to get the information. And the moment I get any information that is authentic, I will definitely share with you. But unless some real information is there, how I can share with you? Okay, so you have to bear with me. God bless you all. यही बातें हम हिंदी में करेंगे. PNB क्लरिकल को की ज्वाइनिंग को लेके आपके निरंतर मैसेज आ रहे हैं, आपके निरंतर क्वेरी आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं. देखो, अभी तक मैंने कोशिश की है जानने की कि कब होगी ज्वाइनिंग, कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है. इसके अंदर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है तो आप नियर बाय रीजनल ऑफिस या सर्कल ऑफिस में विज़िट करके इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लरिकल ज्वाइनिंग होंगी वो रीजनल सर्कल ऑफिस लेवल पे होंगी. तो सबसे पहले उनको ही पता लगेगा कब ये ज्वाइनिंग होनी है. दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन हुई है ना वो 31 मार्च 2025 तक वैलिड है. और हर बैंक अपनी ज़रूरत के अनुसार रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करता है. उन्होंने डीवी आपकी कर ली है. अब जैसे जैसे ज़रूरत होगी या तो सिंगल बैच में या मल्टीपल बैच में ज्वाइनिंग होगी, जो नॉर्मल प्रोसीजर है. इसलिए हो सकता है कि अब काफ़ी गैप हो गया आपका डीवी हुए और बैंकों में ज्वाइनिंग चल रही है तो चिंता हो जाती है. बट हर बैंक का अपना अलग सिस्टम है. हर बैंक ने अपनी पूरे साल भर की कितनी रिक्वायरमेंट थी वो IBPS को दी, उतने कैंडिडेट उनको एलोकेट हो गए, उन्होंने अपनी डीवी प्रोसेस स्टार्ट कर लिए. अब जैसे जैसे ज़रूरत होगी स्टाफ की और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे या ज्वाइनिंग का शेड्यूल भेजेंगे. और ये शेड्यूल सबसे पहले आएगा वेबसाइट पे. तो वेबसाइट आपको निरंतर देखते रहनी चाहिए.
और इसी तरीके से जिसको भी सूचना मिलती है हम कोशिश करते हैं कि वो सूचना हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें वीडियो के जरिए। और एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ भी हम ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमें पता लगेगा कि पीएनबी क्लरिकल की ज्वाइनिंग के बारे में कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो मैं वीडियो के जरिए भी आपको बताऊँगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं और ये क्वेरी होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आपका डीवी हुए काफ़ी दिन हो गए तो आपको चिंता हो रही है कि मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही। ये सबको होती है, पर बैंक ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये हमें समझना है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज होती हैं ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की होती है। ये 1 अप्रैल 2024 से मार्च 25 तक की वैकेंसीज है। तो कई बैंक ज्वाइनिंग करा देते हैं जून से पहले, कई बैंक ज्वाइनिंग कराते हैं जुलाई से सितंबर क्वार्टर के अंदर, और कई कराते हैं अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के अंदर। यूजुअली काफ़ी ज्वाइनिंग सितंबर तक हो जाती है, फिर भी कई ज्वाइनिंग सितंबर के बैंड भी चली जाती है। तो इसलिए हमें धैर्य रखना है, और किसी को भी कोई सूचना मिलती है वो ज़रूर शेयर करें। मैं भी अपने लेवल पर जब भी इंफॉर्मेशन होगी, मगर वो ऑथेंटिक होनी चाहिए ना, क्योंकि इस चैनल का काम है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। मैं कभी भी वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ जब तक मैं उसको क्रॉस चेक नहीं कर लेता काफ़ी लोगों से, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी जो हमारा कैंडिडेट है उसको गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन ना चली जाए जिससे उसको कोई नुकसान हो जाए। तो सही सूचना पाने के लिए कई बार हम उस सूचना को डिलेड भी देते हैं, आपको जल्दबाजी में नहीं देते हैं। जब तक मैं उसको क्रॉस चेक नहीं कर लेता मैं उस सूचना को अपने चैनल पे प्रसारित नहीं करता। कई सूचना ऐसी होती हैं वो वेबसाइट पे आ गई, पब्लिक हो गई, और अधिक लोगों को पता लग जाए तो हम उसके आधार पर भी वीडियो बना के और अपने जो चैनल है टेलीग्राम चैनल उस पर शेयर करके आपको बता देते हैं। पर अगर कोई सूचना ही नहीं है, देखिए ना, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कहीं से निकालिए सूचना, ऐसे निकलती नहीं है सूचनाएं बैंक के अंदर, और वो इथिकल भी नहीं होती है। जब तक ऑथेंटिक ना हो इंफॉर्मेशन, जब तक वो सूचना शेयर करने के काबिल ना हो, तब तक उसको शेयर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कई होंगे जो बैंक में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, वो मेरे टच में भी हैं, मगर अगर कोई मुझे सरसरी इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसको मैं पब्लिक कर दूं, ये इथिकल नहीं है, वो मैं करूंगा नहीं, ठीक है। मैं तभी आपको बताऊंगा वो चीज़ जब वो प्रॉपर चैनल से गुजर चुकी है और उसमें प्रॉपर न्यूज़ बन चुकी है, तब हम आपके साथ शेयर करते हैं। कोई अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई इनसाइडर न्यूज़, वो मेरा काम नहीं है। देखो मैं वो कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो टच में बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर मेरे टच में हैं, बहुत सूचनाएं मेरे को बताते भी रहते हैं, मैं शेयर भी मेरे पास करते रहते हैं। बट हमें एक इथिक्स को मेंटेन करना होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।